और इसमें पब्लिशर्स ने भी बहुत एफर्ट्स लिए हैं और किए हैं। मैं आई वॉज प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स फॉर 5 years और उसमें हम लोग एक अवार्ड भी रखा हुआ है, एक्सीलेंस इन बुक प्रोडक्शन, एंड दैट अवार्ड सिस्टम हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द पास्ट 43 years. And the idea originally was that our books, Indian books, should compare with international. So that's what we are slowly reaching up, and I think we have almost reached that level. Publishing is a business like any other business, but it's an institution reflecting on and influencing the society as such. Development of book industry as is the development of a nation almost, because if publishing goes up, if education goes up, the nation also goes up. So that's the contribution of publishing as far as I have learned so far in my life. Last year in 2021 we commissioned Nielsen in the Federation of Indian Publishers to work on the data about the publishing. They brought out, after about 1 year of efforts, last year, they brought out India Book Market Report, which was unique in itself. And it transpired from the report that, one, we are the 3rd largest publishing nation in the world. Now, earlier we used to call it 6th largest, but now we are the 3rd largest after US and China. So we are the 3rd largest in terms of publishing, and 2nd largest in terms of English language publishing. That is, after USA, India publishes the highest, not UK. So that's the level that we have reached already. Nearly 1,46,000 books were published in 24 languages during the year 2021. That's the estimate that they have, surveyed different databases and all that, and this is what has come out. And the industry, this does not include, this only includes the 24 languages, does not include our other lesser known tribal languages. Of course, publishing does happen, and it is because of the publishing only that these languages will survive. Otherwise, slowly the speakers are vanishing and the language also will vanish. And if the language vanishes, perhaps the culture also is affected. So, basically, I will say publishing does happen in those small languages also, maybe 1 or 2 books or 5 books in a year, but it does happen. And it should continue to happen, because that is the folk literature which must come in, which is very important. The overall industry valuation by them was 73,900 crore rupees. That is equal to $9.5 billion. And the estimate, the growth estimate that is going on at the moment is that we will touch 1 lakh crore in March 25. That is year 24-25, we will touch 1 lakh crore. Because the overall growth that we are noticing is 19.8% year-on-year basis. And the publishing includes K-12 higher education, and K-12 and higher education overall, the share of K-12 and higher education is 96% according to the estimates. That is to say, trade books, fiction and all, we only hold 4% at the moment. This has to be maintained. This has to be further, I must say, increased. And for that, we have to create reading habit right from the children itself. हम लोग ने इंडियन पब्लिशर्स कॉन्फ्रेंस अभी की थी अगस्त में. That was a 2-day conference. और उसकी इनॉग्रेट किया था स्मृति ईरानी जी, our Minister of
ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स, उनने बोला कि भाई देखिए, द वॉइस, द पब्लिशिंग इंडस्ट्री हैज टू क्रिएट इट्स वॉइस बिकॉज इट्स वॉइस हैज टू बी हर्ड बाय द पीपल इन जनरल एंड देन इट गोज टू द गवर्नमेंट। एंड सेकेंडली शी सेड कि हम बोलते हैं कि बच्चे लोग तो सिर्फ मोबाइल देखते हैं, गैजेट्स देखते हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, रीडिंग नहीं है। रीडिंग के लिए she said schools are not responsible, government is not responsible, हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं कि अगर हम भी मोबाइल लेके बैठे होंगे तो बच्चे भी मोबाइल लेके बैठेंगे। अगर इसको आगे बढ़ाना है तो पहले पेरेंट्स किताब पकड़े, फिर बच्चे के हाथ में किताब देंगे तो रीजन है वो पढ़ेगा। दूसरे, पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट्स को बड़े जोर शोर से आना है। अभी नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी का भी एक्सपर्ट कमेटी में मैं था, वहां भी मैंने बार बार ये बोला है पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, तभी लोग पढ़ेंगे। हर गली नुक्कड़ में अगर लाइब्रेरी होगी तो देयर विल बी रीजन टू गो। ये था रीडिंग हैबिट इंक्रीज करनी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो नया आया है उसके अंदर लैंग्वेजेस में भी अब कोर्सेज रहेंगे और लैंग्वेजेस में पढ़ाई करवाई जाएगी, हमारी लैंग्वेजेस में, our 24 languages. The idea is, what I want to say is, publishing is going to touch both once this is implemented. Right. We are exporting books also. I have been to export of books for the past 55 years, and a lot of books are exported, and all major countries, Americas or maybe Africa, Asia, Middle East, Australia, everywhere our books are going at the moment. And the reason for this is the Indian diaspora living there. One. Number two, our students are going in great number to join international universities. So what is happening is that creates the reason कि उसकी वजह से लोग किताबें इम्पोर्ट हो रही हैं इंडियन बुक्स में। Books are cultural ambassadors. And they are really cultural ambassadors if they are really exported to countries outside India and people read them. So this is what I wanted to say. And now, digitization, that's what the problem of the day is, surely changed face of the industry. And there are advantages also. But at the same time, a written book, a printed book has its own value. Despite all apprehensions aired by many about the demise of the book because of various available platforms, the book still will have special place in the hearts of people. That's what I think about it. Deep penetration is done by visual media among everybody. But still, this can be really stored. I would say at least education cannot come easily if you are only watching movies or watching through the digital form, because you have to write also to remember, to read and to understand it. So I think books will continue to stay. With these words, I'll just stop here and I'll request my fellow colleagues to come forward and give their ideas. I now request Mr. Manu Dash first to please come forward and give his views. नमस्कार। मित्तल साहब और दोस्त सामंतराय जी, आंडे पात्र साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं हिंदी में बोलूँगा इसलिए कि मेरा हिंदी अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लोग समझ पाएंगे जो हिंदी में और कुछ लोग जो उड़ीसा का बाहर से आए हैं। अभी मैं गिनती कर रहा था जब मित्तल साहब बहुत सारे परिसंख्यान स्टैटिस्टिक्स से और रोजी पिक्चर दे रहे थे। मैं गिनती कर रहा था, टोटल 40 से 42 आदमी है, उससे 50% ये कर रहे हैं, ब्राउजिंग कर रहे हैं फेसबुक या सोशल मीडिया में, और बच्चे लोग पीछे जो है काम करते करते थक गए, थोड़ा गप्पा मार रहे हैं।
चलो कोई बात नहीं है, दैट इज द रियल पिक्चर ऑफ द सोसाइटी नाउ. I am not blaming anybody or any sarcastic comments. That is the real stock of the situation in the country now. मित्तल साहब तो दिल्ली में रहते हैं, बहुत रोजी पिक्चर दिए, ऐसा होने वाला, ऐसा होने वाला, 140 करोड़ देशवासियों का देश है, मगर इधर पढ़ाई कोई नहीं कर रहा है. मेरा 2 बच्चे हैं, इंजीनियर्स हैं, जिंदगी में एक बार एक लिटरेचर का किताब पकड़े नहीं, घर में कम से कम 10 लाख रुपए का किताब होगा, यह हकीकत है. मिसेस पढ़ते हैं तो मोबाइल पढ़ते हैं और कुक, और नहीं तो किसी का साथ गप्पा मारते हैं. पिताजी पढ़ते थे, पढ़ाई ज़्यादा नहीं था, पढ़ते थे कुछ रामायण या महाभारत या भागवत पढ़ते थे. मेरा ग्रैंडफादर भी भागवत सप्ताह बहुत जाते थे, मैं देखा हूँ, उनके साथ में मैं गया हूँ. तो पढ़ाई धीरे धीरे जो कम हो गया, इसके लिए मेरा बच्चा दोषी नहीं है. मैं आई कैंट ब्लेम माई सन दैट ही इज नॉट रीडिंग. इट इज आई एम टू बी ब्लेम्ड दैट आई कुड नॉट इनकल्कुलेट ऑफ द रीडिंग हैबिट इन हिम फॉर व्हिच ही फेल्ड टू रीड. ही डिड लव टू रीड. One, as a publisher, I have seen many of my friends or writers used to approach us for the publishing. That is the ultimate destination of any writer. They used to come. But लिखते क्या? पोइट्री भी ढंग से नहीं लिखा जाता है. आपने अच्छा शॉर्ट स्टोरी किताब भी नहीं पाएंगे उड़िया में. अगर मैं बताऊंगा, मेरा दोस्त परेश है और वो यहाँ तो बहुत दिग्गज है, जैसे मनोरंजन व्यापारी साहब है, पॉल साहब है, नीलिम है, बड़े बड़े राइटर है, गुस्सा हो जाएंगे. मगर ढंग का किताब भी उड़िया में नहीं लिखा जा रहा है, ताकि हम उसको नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल में प्रेजेंट कर सकें. अगर तमिल पेरुमल मुरुगन को दे सकता है या जावेद साहब को दे सकता है, उर्दू दे सकता है, रहमान अब्बास दे सकता है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? हमारा उड़ीसा में किताब अगर 300 कॉपी बेच दिया सालों में, राजेंद्र बाबू तो बैठे हैं, जानते होंगे, 300 कॉपी अगर बेच दिए तो बहुत बड़ा बात हो गया. यहाँ सारे लोग अंग्रेजी को ऑलमोस्ट घृणा करते हैं, अंग्रेजी को अच्छा नहीं लगता है. भाषा का क्या दोष है? आप साहित्य को भाषा से अलग करिए ना. यू सी द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग, नॉट द लैंग्वेज ऑन व्हिच यू आर राइटिंग. प्रॉब्लम हमारा क्या है? हमारा पाठक नहीं है. पाठक से ज़्यादा पब्लिशर हम लोग बन गए, और वो पब्लिशिंग भी मशरूमिंग लाइक दिस वैनिटी पब्लिशर बहुत ज़्यादा हो गए. ओरिजिनल पब्लिशर कोई नहीं है. जो भी थे वो भी धीरे धीरे वैनिटी बन रहे हैं. दिस इज द हकीकत, रियलिटी ये है. अगर रियलिटी चेक में जाएंगे, वी आर इन अ वेरी बैड फेज ऑफ आवर लाइफ. वी ऑलवेज ब्लेम कि लोग अंग्रेजी पढ़े, उड़िया को हटादर किए. हमारा 10 लाख स्टूडेंट्स पढ़ते हैं हर साल उड़िया में, एग्जाम देते हैं. 1 लाख देते हैं. मैं एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक्स मेरे पास नहीं, मतलब 1/10 देते हैं अंग्रेजी में, एग्जाम देते हैं CBSE ICSE कोर्स में. 1 लाख लोग कैसे थ्रेड बन जाएंगे 10 लाख लोगों में? हम कभी सोचे नहीं. हम हमेशा बोलते हैं कि हम सब लोग तो चाहते हैं हमारे घर में हमारा बच्चा अंग्रेजी में पढ़े और बड़ा बड़ा नौकरी किए. कितना अंग्रेजी पढ़ के बड़ा नौकरी किए हैं? कुछ नहीं किए. नीरज सिंह चौधरी क्या अंग्रेजी पढ़ के शुरुआत किए थे, लेकर किए थे? तो हमको हकीकत में जाना पड़ेगा. वी डोंट गो इन दैट वे एंड वी डोंट यूज आवर ब्रेन. सब लोग तो हमारे पास आते हैं. आपने विश्वास नहीं करेंगे, हमारा 80s में जो स्टोरीज लिखा हुआ था काफी फॉल हो चुका है. हमारा नॉवेल्स नहीं है बराबर है, हमारा प्ले राइट्स नहीं है बोलने से आपको खराब भी लगेगा. वी डू नॉट हैव ए नेक्स्ट टू मनोरंजन दास, विजय मिश्रा और विश्वजीत दास. तो रियलिटी यह है कि हमारा पास अच्छा लेखक नहीं है, एंड नॉन फिक्शन तो नहीं क्या बराबर है उड़ीसा में. फेस्टिवल तो हो रहा है, होना चाहिए. लोगों को जानना चाहिए कि परिस्थिति क्या है. गुड़ी गुड़ी बात करके चले जाने से कुछ नहीं होता है. मैं तो 8 साल हुआ फेस्टिवल कर रहा हूँ और सैकड़ों फेस्टिवल इंडिया में अटेंड कर चुका हूँ.
मगर है क्या हो रहा है? आप चलिए तो इधर में देखिए कितना किताब खरीद कर रहे हैं, जितना राइटर आए हैं, जितने लोग आए हैं, कितना किताब खरीद कर रहे हैं। किस बात का फेस्टिवल है? अगर लोग किताब नहीं खरीद करेंगे, नहीं पढ़ेंगे। अभी अभी एक फ्रेंड मेरा BHU में प्रोफेसर है, उनका एक किताब निकला। वो किताब सुनिए तो भैया, प्लीज लिसन। एक किताब अभी निकला है, 100 कॉपी उड़ीसा को लाया है उसने। अंग्रेजी का किताब छपा, उड़िया का अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ। एक बुक सेलर 100 कॉपी लाया, 50 कॉपीज टू कटक एंड 50 कॉपीज टू भुवनेश्वर। 15 दिन में सिर्फ 5 कॉपी बेचा है उड़ीसा का आदमी का। एक स्टूडेंट दिया 4 कॉपी। और ये बात मैं किसी को डिप्रेस करने के लिए नहीं बोल रहा। वी मस्ट नो द हकीकत एंड वी शुड फाइंड आउट द सॉल्यूशन। आग को छुपा के रखने से आग बुझता नहीं, शरीर जल जाता है। वी मस्ट नो इट इज। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बंगाल में बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो भी मेरे को मालूम है। जो बोलने का, हाथी का, दिखाने का और खाने का चीज अलग अलग होता है। ओनली होता है, हाँ, यस, इट इज हैपनिंग इन मलयालम, नो डाउट ऑफ इट। इट इज इन इंग्लिश एज वेल एज ओडिया, सॉरी, इन मलयालम एज वेल एज इन इंग्लिश। Paul sir will tell better. They are in different trend together. Why? Because उन लोगों का लाइब्रेरी मूवमेंट वॉज स्ट्रॉन्गर। हर एक गांव में रीडिंग कल्चर बरकरार है। हमारा गांव में लाइब्रेरी नहीं है। जो लाइब्रेरी नहीं है, इट इज डिफंक्ट। आपका जितना किताब ले रहा है साहित्य अकेडमी, आप उससे पैसा लेके गोदाम में रखा है और उसका भाड़ा भी दे रहा है भुवनेश्वर में। 4 गोदाम करेंगे। साहित्य अकेडमी का प्रेसिडेंट भी बैठे हैं, सुनते होंगे। कुछ नहीं कर पाए, इलाज कुछ नहीं है। भाषण देना है, फोटो कल सुबह छपवा जाना है पेपर में। मेरा फोटो आ गया तो एक तो तसल्ली आ गया कि अरे मेरा बहुत गलत हो रहा है। दिस इज द रियल वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। मैं 6 साल हुआ पब्लिशिंग कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कई अच्छे राइटर जुड़े हुए हैं, मगर सेटिंग इज रियली appalling। मैं सोचता हूँ आप लोग उसके बारे में गौर करेंगे। देयर इज ऑलवेज, जहाँ भी कोई सिचुएशन प्रॉब्लम है, सोल्यूशन जरूर है, मगर सोल्यूशन के बारे में कोई सोचते नहीं है। हाउ टू सी दैट रीडिंग कल्चर कम्स बैक? People read the books, and good books are written. Then only publishing, everything will thrive. Culture will come, will fall into its own place. That is what I am thinking. मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। मैं बहुत सारे धन्यवाद देना चाहता हूँ शुआ यूनिवर्सिटी को, गायत्री जी को, कि बिकॉज ये 40 मिनट रखे और 30 मिनट रखे तो मैं तहदील से उन्हें धन्यवाद देता, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय नष्ट करने का कोई मतलब नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you so much.